Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Cambridge International O-Level Biology course and we are on our chapter number 2, which is diffusion and osmosis. Now we are on our second subtopic, which is osmosis, and further in osmosis we studied about the concept of osmosis and water potential. As we studied in diffusion, that diffusion is the movement of molecules or ions from their higher concentration towards the lower concentration, but osmosis is the movement of only water molecules from a region of high concentration to a region of lower concentration through partially permeable membrane. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट सेम है कि इन्होंने एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है. ओवरऑल द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन towards the lower concentration through a partially permeable membrane. यहाँ पे partially permeable membrane से movement of molecules होगी, और partially permeable membranes also known as the semi-permeable membrane, which is the type of a biological membrane that will allow certain molecules or ions only to pass through it by diffusion. ऐसी membrane जो कि सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है पास होने के लिए, उसको हम कहते हैं कि डैट इज़ द पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन और आल्सो एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो अब हम देखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है. व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व्स इनटू अनदर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. जब एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाती है तो उसके रिजल्ट में एक सॉल्यूशन बनता है. Or solution is the mixture consisting of a solute dissolved into a solvent. The solute is the substance that is being dissolved. वो सॉल्यूट एक वो सब्सटेंस है जिसने डिज़ोल्व होना है, और सॉल्वेंट एक मीडियम है जिसमें सॉल्यूट ने डिज़ोल्व होना है. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज़ द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ये सॉल्यूट है, पानी इज़ अ सॉल्वेंट, एंड जब हमने इसको इसमें डाला तो ये सॉल्यूशन बन गया. सो दिस इज़ another, this is molecules of solute and water एक solvent है, और overall this is known as the solution. So osmosis is the diffusion of water molecules. क्या है? diffusion ही है, लेकिन किसकी डिफ्यूजन है? वाटर मॉलिक्यूल्स की. कैसी डिफ्यूजन है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. Osmosis has to take place through a partially permeable membrane. This means that water molecules moves from a place of their higher concentration to a place of their lower concentration through a membrane with pores. Pores होंगे जिसकी वजह से ये it lets some molecules pass through it but not others. So this is the semi-permeable membrane. Osmosis is the diffusion of water molecules, and osmosis is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. अब यहाँ पे हम ये इमेज देखते हैं कि ये एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पोर्स हैं, जहाँ पे ये एरोस बने हुए हैं. दीज आर द पोर्स. देन ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है. अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और राइट साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं और सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. सो अब मूवमेंट होगी यहाँ से यहाँ, लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की. अब ये छोटे थे, ये पोर्स से निकलते जाएंगे और सुक्रोज मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर गए. सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड द सुक्रोज मॉलिक्यूल्स.
So this is the movement of water molecules from higher concentration towards lower concentration through a partially permeable membrane, and this process is known as the diffusion. This process is known as the osmosis, which is the diffusion of water molecules. So movement of water molecules through a partially permeable membrane, and in this diffusion model of osmosis, more water molecules move from left to right than from right to left. लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की. So on the left side there is pure water, on the right side there is a solution of sucrose. The water molecules move freely through the membrane by diffusion, but the sucrose molecules are too large to pass through the holes in the membrane. The solution on the right side has low concentration of water molecules than the water on the left, so by rules of diffusion more water will move from left to right. So this is another easy concept to understand. Then अब वही चीज़ यहाँ पे हमने एक U शेप ट्यूब में एक्सप्लेन की गई है. Now imagine water in sucrose solution placed in a U-shaped tube separated by the same partial permeable membrane. So this is the partially permeable membrane. This separates the water molecule and sucrose molecule. जैसे ही water molecules इधर से मूव करेगा इस साइड की तरफ, उसका लेवल भी हाई हो जाएगा. सो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो वाटर का लेवल हाई हो गया है. So this is the high level of water molecules. So क्या हुआ है कि वाटर ये लेफ़्ट पे ज़्यादा था, राइट पे कम था. वाटर के मॉलिक्यूल्स लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर का लेवल भी अप हो जाएगा. सो कि सारे वहाँ से पार्टिकल निकल के राइट की तरफ जा रहे हैं. सो ऑस्मोसिस थ्रू अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस अ प्रेशर. जैसे ही वो उधर से निकल के राइट पे जाएगा, प्रेशर भी डेवलप करता जाएगा और वो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. वाटर मोलिक्यूल्स विल मूव बाय ऑस्मोसिस from left to right, exerting a pressure on the sucrose solution so that its level will rise up in the tube. Next we have the water potential. So ये जो टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ फ्रीली द वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सोल्यूशन कैन मूव, this is the water potential. Since water is a polar molecule, many substances dissolve in it. These dissolved substances are termed as solutes, क्योंकि solutes ही हैं जो कि dissolve होते हैं solvent में, और water एक solvent है. Osmosis is the diffusion of water molecules. When we speak about osmosis, we don't say water concentration. Instead, we use the term water potential. क्योंकि ये जो फ्रीली मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, हम इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं कि ये वाटर पोटेंशियल है. ये एक वाटर का पोटेंशियल है मूव करने का फ्रॉम देयर हाई लेवल टू देयर लो लेवल. सो जो टर्म एक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है, इस टर्म को हम कह रहे हैं कि ये वाटर पोटेंशियल है. A dilute solution means it has lots of water molecules. अब एक डाइल्यूट जो सोल्यूशन होती है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं. अगर वो वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है. फिर अ concentrated solution has a fewer molecules and low water potential. क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा सोल्यूट होता है, वाटर कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. और इसीलिए अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वाटर का पोटेंशियल भी कम होगा. और अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल प्रोड्यूसेस अ प्रेशर, और इसीलिए हम वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर में, और यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल. ठीक है, क्या अब इसमें हमने पढ़ा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है और एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होती है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, सोल्यूट कम होता है.
सो जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पर वाटर का पोटेंशियल भी कम होगा। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल आती हैं कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक डायलिसिस मशीन होती है उसमें एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं विस्किंग ट्यूबिंग। अब उस मेम्ब्रेन में भी माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं विच आर परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज सुक्रोज वगैरह। तो डायलिसिस की मशीन भी ऑस्मोसिस के ही कॉन्सेप्ट पे रन होती है क्योंकि वह भी एक कुछ मॉलिक्यूल्स को पास कराती है और लार्जर मॉलिक्यूल्स को नहीं कराती। और जो डायलिसिस में जो टर्म यूज़ हो रही है जहाँ पे ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है वो है विस्किंग ट्यूबिंग। सो ये एक बात थी जो कि शेयर की आपसे। सो दोबारा से हम आते हैं अपने वाटर पोटेंशियल की तरफ कि वाटर पोटेंशियल है ही वो टर्म जो कि एक फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसी टर्म को हम कह रहे हैं कि ये एक वाटर का पोटेंशियल है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में कम होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। Water molecules in pure water have the highest kinetic energy and the highest water potential. If a sucrose अगर कोई सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन वही बात है कि a concentrated solution is the one that has relatively large amount of dissolved solute, इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। A dilute solution is the one that has relatively small amounts of dissolved solute, that means यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देन वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसा कि हमने कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का पढ़ा था कि एक ग्रेडियंट होता ही एक इंक्लाइन है फ्रॉम हाई टू लो। सो अब यहाँ पे भी तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रही है ना फ्रॉम हाई टू लो। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है। When a partial permeable membrane separates two solutions of different water potential, तो a water potential gradient is established. Water always moves from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential. So osmosis is the movement of water molecules from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential through a partially permeable membrane। ये एक अदर डेफिनेशन थी ऑस्मोसिस की वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड। ज़ाहिर बात है कि ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहीं पर वाटर का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इसलिए अब हम इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि movement of water molecules from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential। जहाँ पे वो हाई मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल। सो अब ये हमारे पास आ गया पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने मोस्ट सोलूट डाला, अगर सोलूट ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे लेस सोलूट है, डेट मीन्स हायर वाटर पोटेंशियल है। सो वाटर की मूवमेंट इस तरफ होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड इसकी वजह से एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा बिकॉज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम राइट, this is right, this is left. So the movement of water molecules is from right to left. So this is all about osmosis and water potential. Thank you.